Everyone. Thank you for gathering here today. I'm CA Falguni Srivastav and I'll be breaking down the concepts of FEMA in order to simplify it for you. So, from today onwards, we are starting this series named as FEMA series. So, now first question comes into mind as you can see in this picture, the Foreign Exchange Management Act 1999. This act came into force on 1st June 2000. This act was passed and enacted in the parliament in 1999. However, it came into force from 1st June 2000. Now, what is foreign exchange? This is the very first question which should come in everyone's mind. What is foreign exchange? Can anyone guess what is foreign exchange? If you can, please comment down below and I'll see it obviously afterwards that whatever you have commented and I'll pin that comment. So foreign exchange refers to any currency, any that is not in the official currency of a particular country. In simpler terms, we can say it is the exchange of one currency for another. For example, you want to buy something from USA or US or any country, you have to exchange INR with money exchangers or anyone in order to buy that product because they will accept obviously dollars and in whichever country you will वो country अपना ही currency accept करेगा so you have to buy that currency in order to pay them. So this is foreign exchange. You do the export contract can be in their currency or your Indian currency, depending upon the contract agreements and everything. But if they want to pay you, they will exchange the foreign currency. And if you want, if, for example, the contract is in dollars, so you have to exchange convert it into INR because dollars का obviously आप क्या करोगे रख के है ना. So this is all foreign exchange and जहाँ पे भी दो countries करेंसी का इन्वॉल्वमेंट आता है वहां पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सीधा सीधा सा अप्लाई हो जाता है. नाउ पेज में थोड़ा नीचे चलते हैं. फॉरेन एक्सचेंज जैसा कि मैंने बताया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में था इनेक्टेड हुआ था पार्लियामेंट में पास हुआ था एंड 1st June 2000 में दिस एक्ट केम इनटू द फोर्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ये अप्लाई किस पे होता है. इस दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया. आई मीन होल. देन all the Indian citizens living outside India. Then अब कौन बचे. अब वो लोग बचे जो जो लाइक जो ऑफिसेज हैं ब्रांचेस हैं एजेंसीज हैं इंडिया के बाहर कोई इंडिया का ही बंदा कंट्रोल कर रहा है बट उस बंदे पे एक्ट अप्लाई होता है. मे बी ही इज एन आर आई इंडियन सिटीजन सो ही इज ऑपरेटिंग दैट ब्रांच और ऑफिस एनीथिंग आउटसाइड इंडिया एंड उस पे एक्ट अप्लाई होगा. कोई बाहर की कंट्री है जिसका यहाँ पे ऑफिस है उस पे भी एक्ट अप्लाई होगा ऑब्वियसली. इंडिया पे पूरे पे एक्सटेंडेड तो उन ब्रांचेस ऑफिस पे एजेंसीज पे भी अप्लाई होगा. Now, हर एक्ट में यूजुअली सेक्शन 2 इज फॉर डेफिनेशंस. हर एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशंस का होता है मोस्टली अदरवाइज सेक्शन 3 होता है बट कॉमनली आपको सेक्शन 2 डेफिनेशंस का मिलेगा हर एक्ट में. सो यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस कुछ सेलेक्टेड डेफिनेशंस जो काफी कॉमन होती है वो मैंने लिस्ट आउट करी है. फर्स्ट इज ऑथराइज्ड पर्सन. आप नॉर्मली जाके फॉरेन एक्सचेंज डील यूएस डॉलर्स में या किसी चीज में आप डील नहीं कर सकते. यू आर नॉट अलाउड टू. आरबीआई प्रोहिबिट्स दिस. सो आप कैसे डील करोगे. आरबीआई ने कुछ ऑथराइज डीलर्स हैं जो आरबीआई से परमिशन लेते हैं और मैंने ऑथराइज कर रखा है. सिर्फ उन्हीं के रूप से आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं. This authorized dealer can be banks, financial institutions, money exchanges. They can be anyone who all are authorized by the RBI. So, this is the definition of the authorized person. Now, what is foreign security? Foreign security can be in the form of shares, stocks, bonds, debentures, or any instrument denominated or any foreign currency that includes or any securities in foreign currency
whose redemption or interest or dividend payments will be in Indian currency. That is also called foreign currency. Foreign exchange, as we already discussed what is foreign exchange, this definition is just listed out. Now, what is capital account transaction? Capital account transaction is a transaction which alters assets or liabilities, including contingent liabilities, outside India of a person resident in India. इंडिया का कोई पर्सन है, उसकी कोई भी एसेट या लाइबिलिटीज इंडिया से बाहर है, अगर वो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन करता है जिससे उसकी इंडिया से बाहर एसेट्स या लाइबिलिटीज ऑल्टर होती हैं, देन दिस ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब इसी का वाइस वर्सा, कोई पर्सन है जो इंडिया से बाहर रेजिडेंट है, उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंडिया में है, और वो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा है जिससे वो अल्टर हो रही है, तो दिस विल बी काउंटेड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, and it includes transactions referred to in subsection 3 of section 6। ये हम बाद में पढ़ेंगे। Now what is current account transaction? Current account transaction basically एक रेजिडुअल कह सकते हो आप, कि जो भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा वो सारा करंट अकाउंट में डाल दिया गया। So it means a transaction other than a capital account transaction, and without prejudice to the generality of the foregoing, such transaction it includes पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, कोई भी फॉरेन ट्रेड कर है उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट्स लेनी देनी करनी है वो करेंट अकाउंट में आएगा। अदर देन बिजनेस सर्विसेज, कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटीज है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की, वो भी हमारे करेंट अकाउंट में आती है। कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है या कोई इन्वेस्टमेंट पे हमें इनकम रिसीव हो रहा है, दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कोई रेमिटेंस कर रहे हैं हम इंडिया से बाहर अपने पेरेंट्स का लिविंग एक्सपेंसेस का, या इंडिया में आ रहा है वो पेमेंट, दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड कोई फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा हुआ, एजुकेशन में, मेडिकल केयर पे, वो सारी चीजें बेसिकली जो डे टू डे लाइफ के हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं यूजुअली, वो सारी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आती हैं। तो व्हाट इज रिपैट्रिएटेड टू इंडिया? सेक्शन 2 क्लॉज 1 में रिपैट्रिएट टू इंडिया का डेफिनेशन दिया है। आरबीआई कहते हैं कि जब भी आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, उतने टाइम लिमिट के अंदर आपको इंडिया में पैसा रिपैट्रिएट करना था। रिपैट्रिएट मतलब वापस लाना। रिपैट्रिएट टू इंडिया, आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, उसका पैसा आपको रिसीव होना था, आपको इंडिया में वापस लाना है। सो उसकी डेफिनेशन दी गई है कि रिपैट्रिएट टू इंडिया कब माना जाएगा। रिपैट्रिएट टू इंडिया मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया द रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड the selling of such foreign exchange to authorized persons। authorized persons जो भी हमने ऊपर पढ़े थे वही लोग, in exchange for rupees, आपने फॉरेन एक्सचेंज दिया ऑथराइज्ड पर्सन को, उसके अगेंस्ट पैसे दिए, इंडियन आईएनआर लिया। The holding of realized amount in an account with authorized person in India to the extent notified by the Reserve Bank। ये हम पढ़ेंगे यहाँ किस चीज की बात हो रही है। बेसिकली इवन आप अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं अपने कुछ अकाउंट स्पेसिफाइड है उसमें होल्ड करते हैं तो उसको भी रिपैट्रिएट टू इंडिया कंसिडर कर लिया जाता है। काफी सारी चीजें, ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसे भी चीजें होती हैं, तो वो सारा रिपैट्रिएट टू इंडिया में कंसिडर होता है। Now section 2 clause U gives you the definition of a person. Who is a person? It is individual। जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे सी फाल्गुनी श्रीवास्तव, आप हो गए, हम लोग इंडिविजुअल काउंट होते हैं। HUF you all already know। Company, firm में partnership firm, LLP both are included। Association of persons, AOP, BOI, artificial judicial persons or and any agency, office, branch owned और कंट्रोल बाय सच पर्सन। इनमें से कोई भी पर्सन अगर कोई एजेंसी, ब्रांच या ऑफिस ओन के कंट्रोल करते हैं। Now we shall come to the definition of person resident in India। सेक्शन 2 क्लॉज V में हमारा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया दिया गया है। कोई भी पर्सन को हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कब कहेंगे? A person resident in India shall be considered when he is residing into the India for more than 182 days during the course of preceding financial year। preceding financial year मतलब पिछले financial year में अगर वो 182 days से ज्यादा रहा है तो हम उसको person resident in India consider करते हैं, but it does not include
कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया से बाहर गया है या इंडिया से बाहर रहता है फॉर एम्प्लॉयमेंट, for carrying on business or vacation outside India, or for a purpose that denotes a certain period of stay outside India. तीन चीजों में हम उसको 180 डेज कंसिडर नहीं करेंगे, और हम उसको हम एक्सक्लूड, हम उसके लिए 180 डेज का क्राइटेरिया नहीं रखेंगे। वो मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इमीडिएटली हो जाएगा, इवन तो 182 डेज वो रहा है फिर भी। कौन से केसेस में? अगर वो इंडिया से बाहर गया है या इंडिया से बाहर रहता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या वो कोई बिजनेस बाहर करने गया है, या फिर सर्टेन पीरियड डिनोट होता है, लाइक हमें लगता है कि वो पता नहीं कब आएगा इंडिया। फॉर एग्जाम्पल आपके या हमारे भी काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया से बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो इम्प्लाइड होता है एजुकेशन के लिए बाहर कोई पर्सन गया है तो वैसे वहां जॉब या बिजनेस कुछ तो करेगा ही, सिर्फ एजुकेशन करके तो कोई जल्दी आ नहीं चाहता वापस, तो एक अनसर्टेन पीरियड डिनोट हो जाता है उससे। तो बेसिकली इस पॉइंट में ऐसे कुछ लोगों की बात हो रही है। Then, but it does not include a person who has come to India or who stays in India otherwise then. इस डेफिनेशन में हम उन लोग जो भी इंडिया में आए हैं या इंडिया में रहते हैं उन लोगों को नहीं मानेंगे। बट अगर वो इन कामों के लिए आए हैं तो हम 180 डेज का क्राइटेरिया नहीं देखेंगे। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं इंडिया में, बिजनेस या वोकेशन के लिए आए हैं, या सेम जैसे इंडिया में पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम उनके लिए 180 डेज का क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, हम उनको इमीडिएटली पर्सन रेसिडेंट इनटू इंडिया बना लेते हैं। Now, any person or a body corporate registered or incorporated in India, इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी है, ठीक है, एंड लिमिटेड कंपनी हो गई, वो सारी चीजें जो भी इंडिया में फॉरेन कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमारी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान ली जाती है। कोई भी ऐसे एक ऐसा ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी जो इंडिया में है बट उसको कंट्रोल कोई बाहर का पर्सन कर रहा है, तो भी वो पर्सन, वो एजेंसी, ब्रांच, ऑफिस पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा ना। कोई भी एक ऐसा ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी जो इंडिया से बाहर है बट उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो पर्सन इंडिया में है, तो भी उस ब्रांच ऑफिस को, एजेंसी को हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। Now, Section 3 deals in foreign exchange. Dealing in foreign exchange is prohibited without permission. This section allows prohibited foreign exchange activities unless authorized by the RBI or under FEMA rules. Buying, selling or transferring of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना, बेचना और ट्रांसफर करना प्रोहिबिटेड अनलेस दिस हैज बीन रूटेड थ्रू ऑथराइज्ड चैनल्स। जब तक आपने जो ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब तक आप उन रूप से नहीं कर रहे हो, बाइंग, सेलिंग और ट्रांसफर करना इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड। मेकिंग पेमेंट टू फॉरेन एंटिटीज, आपको जो भी पेमेंट करनी है वो आप ऑथराइज्ड डीलर्स के रूप से ही कर सकते हैं बस। रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपको जो भी पेमेंट, जो भी चीजें करनी है, एक तो वो फेमा रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, दूसरी चीज वो ऑथराइज पर्सन के रूप से ही होनी चाहिए। Transferring property in India to foreigners, that is also governed by RBI. अपने specific rules and regulations हैं, unauthorized transactions are not allowed. Section 4 deals with holding of foreign exchange. This section prohibits individuals from holding or owning foreign exchange unless they have obtained prior approval from the RBI. आप ऐसे ही USD डॉलर्स या कुछ भी लाके नहीं रख सकते हो। You should have a permission from RBI. Persons residing in India are generally not allowed to own or keep foreign currency, foreign securities like shares in foreign companies or foreign property without the permission of RBI. अभी हम आगे धीरे धीरे करके चीजें पढ़ेंगे, किस केस में अलाउड है, कितना अलाउड है, कहाँ है भी है या नहीं है, ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। This is meant to prevent unauthorized accumulation of foreign assets. However, RBI may provide exceptions for certain purposes, allowing residents to hold foreign exchange under specific circumstances. Section 5 current account transactions, ऊपर अभी हमने पढ़ा था current account transactions कौन सी transactions होती हैं। FEMA generally allows current account transactions from day-to-day business like trade and remittances freely. Current account transactions are permitted unless prohibited. However, the government and RBI can impose certain restrictions. कहीं कहीं restrictions है भी, हम आगे पढ़ेंगे। Current account transactions are governed by Current Account Transaction Rules 2000.
दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये एक रूल स्टाउटेड है जिसके बेसिस पे, जिसमें लिखा हुआ है कौन से परमिटेड है, किसके लिए अप्रूवल चाहिए, किसके लिए क्या चाहिए। वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स में ही सारी चीजें डिफाइंड है। सेक्शन सिक्स इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जैसे कि अभी हम लोग पढ़ा था कि ऑल्टर करती है फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज, एंड जो इंडिया में है फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बट दे ऑल आर सब्जेक्ट टू आरबीआई रेगुलेशंस। RBI has powers to regulate, permit, or restrict capital account transactions. Capital account transactions are prohibited unless permitted. This set of rules list all the permissions capital account अगर list out है तो सिर्फ वही permitted है, but current में ऐसा है कि prohibited listed out है mostly, या approval वाली, otherwise they all are freely approved, and the conditions attached. Special cases for holding foreign assets. If a person acquired foreign currency, foreign security, or property while residing outside India, they may keep these assets even after returning to India. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन था जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं था, उसने तब कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी या कुछ इन्वेस्ट करा था ना, ही कैन कीप दैट बिकॉज उसने उस टाइम इंडिया से बाहर ही था, सारी चीजें थी, हमारा फेमस एक्ट ही उस पर जब अप्लाई नहीं हो रहा था, हम उस चीज को कवर नहीं कर सकते। तो वो जो था उसका, उस पर हमारा कुछ है ही नहीं, ही कैन कंटिन्यू होल्डिंग दैट। सेम गोज फॉर नॉन रेजिडेंट्स जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर है, वो भी आफ्टर लिविंग इन इंडिया वो चीजें मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस। ऐसे ही हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे टू सिंप्लीफाई। ये बस एक जस्ट एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो मैंने लेके आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। फेमा एक्ट सीन बहुत छोटा है, काफी छोटा सा एक्ट है फेमा, बट इट इज सपोर्टेड बाय रेगुलेशंस। जैसा कि अभी आपने करंट अकाउंट का देखा रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसा कि अभी करंट अकाउंट का देखा, कैपिटल अकाउंट का देखा, ऐसे छोटे छोटे डिपॉजिट्स का है, बैंक अकाउंट्स का, ऐसे सारी चीजों का ना सपोर्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फेमा एक्ट बहुत छोटा है बट इट इज गवर्न बाय सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको सपोर्ट करते हैं कि वो काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है अगर पूरा एक्यूमुलेट करें तो। इसी वजह से this all this is not easy to understand। काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है, यहाँ एक एक चीज रेफर करनी पड़ती है, जब आपको भी 10 चीजें एक साथ रेफर करनी पड़ती है तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट नो वरीज, विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो। ऐसी छोटे 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 वीडियोस करके विल सिंप्लीफाई द फेवर। थैंक यू।